FM GKU 90.4 ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾੜ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਟਰੂ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार मैम और सारे श्रोताओं को सत श्री अकाल और आदाब। ਸਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो, डायबिटीज़ बीमारी नहीं, इसको शुगर की बीमारी भी हम बोलते हैं। इसने एक महामारी का रूप धारण किया है, खाली इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी। तो फिर एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी अवेयरनेस के लिए एक डे फिक्स करेंगे हम, जिसमें हम लोगों को इसके बारे डिजीज़ के बारे में, इसकी प्रिवेंशन के बारे में, बचाव और इसका प्रॉपर इलाज क्या होना चाहिए, खान पीन का क्या ध्यान रखना है, और साथ में एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं ना, सैर करने का तरीका और क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज तुम कर सकते हो, उसके लिए ये डेट फिक्स किया है। क्योंकि इसमें जो इंसुलिन का आविष्कार जो हुआ था 1921 में, जो दो कुलीग्स थे, बेंटिंग एंड बेस्ट, तो उसमें बेंटिंग का जो जन्मदिन 14 नवंबर को ही है, इसलिए ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ਸੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਥੀਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਦੀ ਜੇ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ थीम की है? इस बार की थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग। ये देखा गया है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, एक क्रोनिक बीमारी है, कंट्रोल कर सकते हैं टाइम नाल, उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जड़े मानसिक कमजोरी हम बोल सकते हैं, मन ठीक नहीं रहना, कुछ वधिया नहीं लगना, कोई बोले तो सोखा नहीं लगना, घबराहट बेचैनी रहना, तो ऐसे पेशेंट जिनको मन ही नहीं ठीक है ना, तो वो इसका इलाज प्रॉपर नहीं कर पाते। और ये भी देखा गया कि डिप्रेशन वाले पेशेंट को शुगर की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर डायबिटीज है उसमें डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। जब तक मन सही नहीं हो तो सब पेशेंट्स प्रॉपरली अमल नहीं करेंगे, ना खान पीन पे जो बदलाव करना है, जो हेल्दी डाइट फॉलो करना है, ना जो सैर का तरीका, ना वो दवाई पे अमल करता है। तो हमें पहले मन ठीक करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट सारी चीज़ों पे अमल करेगा और इस शुगर के साथ वधिया तरीके नाल लड़ सकता है और अपनी आगे की भविष्य की जिंदगी अच्छी चंगी तरीके नाल चला सकता है। जी FM GKU 90.4 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਟਰੂ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? काउंसलिंग की लोड़ है, पहले पेशेंट ਨੂੰ समझाना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ कर रहे हैं टाइप 2 शुगर दी है, ਜਿਹੜੀ लाइफस्टाइल डिजीज नाल होती है। आजकल ये 40 साल के बाद होता था पहले, जिनका वेट ज्यादा होता, लेकिन आजकल बच्चों में देखो चाइल्डहुड ओबेसिटी, जड़े जंक फूड्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक, जैम्स, बेकरीज, ये सारी चीज़ें ना ओबेसिटी, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मकसद है इनसे शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो 40 साल के बाद, अब 40 साल से पहले हैं, टाइप 2 डायबिटीज की गल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने कहा कि पहले पेशेंट शुगर की बीमारी जब पता चलता है, पहले इनको शौक लग जाता है। तो पहले सारा काम है इनको समझाना, सारे काउंसलर्स, एजुकेटर्स का काम है। ये कोई माड़ी बीमारी नहीं है, समय पर सही इलाज करके थोड़ा माड़ा मोटा परहेज
सैर करके इससे होने वाली सारी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। जो लोग इसके बारे में ये समझते नहीं, समय पर सही इलाज नहीं करते, उनके लिए हमारी बीमारी है, आगे जाके सारे शरीर की खराब कर देता है। तो काउंसलिंग की लोड है, उनको बताना पड़ेगा ये कंट्रोलेबल बीमारी है और अपने खान पीन जो है, अच्छा खान पीन भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बंद करने की लोड है, ये ना समझी की वजह से। अगर प्रॉपर डाइटिशियन से तुम मिलोगे, सारे को जैसे 4 डाइटिशियन से डिपार्टमेंट में, क्योंकि 70% इलाज खान पीन से ही होगा। ये खाली शुगर पेशेंट्स के लिए कल का कैंप नहीं है, जिनको शुगर की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा है उनके लिए भी है। अगर मान लो किसी का वेट ज्यादा है, मानसिक तनाव ज्यादा है, माँ बाप को शुगर है, पेट पे फैट ज्यादा आ गया, पेट दी अंदर दी चर्बी बहुत मारी है, इसमें फैटी लिवर सी बोलते हैं, ये सब के लिए डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी पेशेंट्स, और स्पेशली पंजाब में ओबेसिटी नंबर 1 है। तो पेशेंट बोलते हैं मेरा वेट तो ठीक है, नॉर्मल वेट ओबेसिटी बोलते हैं, वेट नॉर्मल होने के बावजूद हमारे पेट के अंदर की चर्बी ज्यादा है, जिससे फैटी लिवर हो जाता है। तो फैटी लिवर का भी फाइब्रोस्कैन टेस्ट कल हो रहा है। तो मेरे कहने का मकसद है खान पीन से डरने की लोड नहीं, जरा खान पीन है शुगर दी पेशेंट्स का लगा, ये सब जनरल लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए हेल्दी डाइट है। जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो सबके लिए है। तो घर में सब लोगों को वही फॉलो करना है। भाई शुगर पेशेंट तो ठीक है, तो आप भी तो चाहते हैं कि आगे शुगर की बीमारी ना हो, मोटापा ना हो, फैटी लिवर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, खून संगना ना हो, हार्ट अटैक का रिस्क ना हो। तो ये जो डाइट है ये हम सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो भले आपको आज बीमारी नहीं है, घर में खाली एक पेशेंट है, तो आपको भी बचना है, क्योंकि अगर माता पिता को है आपको भी रिस्क है। इसलिए खान पीन इतना नहीं, थोड़ा माड़ा मोटा चेंज करके जो तुसी खा रहे हो, सीधी सी गल है, एक पंजाब का पर्सन उनका खान पीन अलग है, मैं कश्मीर से मेरा खाना पीना अलग है, एक साउथ का खाना, हमें पहले उनके काम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उनका कस्टमाइज डाइट प्लान बनाया जाता है, जो पेशेंट का चंगी तरीके नाल मैं अमल कर रहा हूँ। मेरी तो सेहत बहुत अच्छी होगी, चंगी होगी, मैं तो बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी ज्यादा आ गई। तो खाना पीना अच्छा खाने से हमारी बॉडी को फायदा मिलेगा। खाली शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी हेल्दी डाइट प्लान है, और माड़ा मोटा चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ खा सकते हैं, बट सबका लिमिट होना चाहिए। ਜੀ ਸੋ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, 80542 63346 80542 63346 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? साड़ा बेसिकली खान पीन अब बहुत बदल गया है। आप कुछ देख रहे हैं आजकल खाने पीने में ऐसी चीजें आ गई जो रिफाइंड शुगर्स असी बोलते हैं। एक तो हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, वो भी खाना स्टार्ट, मैंने कहा बच्चों में जैसे हम आजकल बटन दबा दिया तो बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, तो सारे नेचुरल खाना नहीं है, ये हाई कैलोरीज वाला खाना है। नाल असी शुगर संबंधित सारी चीजें, जो मिठाई खाने का ज्यादा मन है, लेकिन हम एक लिमिट में खा सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, सारा डाइट है खाली कार्ब्स है, प्रोटीन कट है। इंडियन पॉपुलेशन में प्रोटीन कट है, शाकाहारी प्रोटीन वैसे नहीं मिलता। और जब हम खाते हैं तो रोटी, सब्जी, आलू, मिठाइयाँ, बेकरी, ये सारी चीजें तो खाली कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से आप देखोगे 100 में से 80 लोगों को फैटी लिवर है जी। तो क्योंकि सारी चर्बी कहाँ जाती है? पेट के अंदर जाती है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम, तो कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें सब, तो पेट के अंदर फैट बढ़ने से इंसुलिन वधिया काम नहीं करता, चंगा काम नहीं कर पाता। फैटी लिवर से होने की वजह से इंसुलिन चंगा काम नहीं करता, तो शुगर का खतरा बढ़ जाता है। तो इंडियंस में ये चीज एक तो मुद्दा है, खान पीन बहुत गलत है, इसको बदलाव करना जरूरी है अगर हम असी चाहते हैं कि आगे शुगर दे पेशेंट ना बढ़े। और दूसरी चीज, ग्राउंड्स कहाँ बच्चे हैं, खेल कूद तो आज के बच्चे तो मोबाइल पे होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, टीवी पे होते हैं। तो वो चीज भी जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, फिजिकल एक्टिव, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी किसी भी तरीके से। मेरा डिपार्टमेंट जो है मैक्स का, मैं डायरेक्टर हूँ, मैक्स शुगर थायराइड हार्मोन्स के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ मैं, वो 3री मंजिल पे है। तो अब मुझे एक मौका मिलता है, मैं सीढ़ी से जाता हूँ, तो थोड़ी एक्सरसाइज तो होगी। तो तरीका, सारे लोग बोलते हैं हम बिजी हैं, तो तरीका समझना पड़ेगा। शॉपिंग करने जाते हैं तो गाड़ी शॉप के पास खड़ी क्यों करना है?
अब वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं, तो आप अपनी पार्किंग स्लॉट में रखिए, वहां से चल के जाइए। तो तरीका है एक्सरसाइज करने का। वैसे आधा पौना घंटा डेली वॉक होना जरूरी है, हफ्ते में 5 दिन होना जरूरी है। तो वॉक नहीं करते तो साइकिलिंग करिए। पहले साइकिलिंग करते थे गांव में लोग, आजकल यहाँ कहाँ पंजाब में साइकिलिंग कर रहे हैं। तो साइकिलिंग करना, वॉक करना, अगर वो भी नहीं है आपके पास टाइम उसके लिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ चलने का मौका मिलता है, तुर लीजिए। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल, हम देखते हैं हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो मदर फादर जैसे कोई बेटा लेके आता है शुगर चेकअप कराने के लिए, तो हम उनके बेटे को भी बोलते हैं शुगर चेक करा लीजिए अब अपना, क्योंकि आपको अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 70% रिस्क है, एक पेरेंट तो 50% रिस्क है। तो जो हमें जीन्स मिले हैं, हम माँ बाप को तो बदल नहीं सकते, वो जीन्स हमारे पास है, लेकिन हम बदल सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी को, लाइफस्टाइल को, खान पीन को, सैर को। और मैं ये कह रहा था, वो बेटे को भी चेक कराते हैं, हम देखते हैं बेटा बहुत वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, पेट पे फैट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, तनाव है, जो भी है, शुगर चेक करते हैं, उनको भी डायबिटीज निकलता है। तो टाइप 2 डायबिटीज कभी शुरुआत में 100 में से 60 लोगों को साइलेंट बीमारी होती है, अदृश्य बीमारी होती है। तो अपना, अगर आपको माँ बाप को शुगर है या एक पेरेंट को शुगर है, आपके ब्रदर सिस्टर्स में शुगर है, अपना शुगर चेक कराइए। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप सैर नहीं करते, आपका मानसिक तनाव ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, प्रेगनेंसी में पहले शुगर रहा है, तो प्लीज आप आगे शुगर हर साल चेक कराइए, कि समय पर चेकअप करने से आपको बीमारी का टाइम पे पता चलेगा और समय पर इसका इलाज होगा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ